Yeah, it started. Uh, Hello everyone. It's a big day for us at the Indie Football Podcast because हमने जब चालू किया था ये 15 महीने पहले, me and Anukarsh, we always thought about expanding it to different segments. Connecting with people with whom we share some kind of a vision around football. And last episode, I'm sure it's a familiar face for all of you now. Karan bhai, thank you for being here, and I'm just excited to doing this data segment with you. Yeah, I mean, Dwayban, thanks a lot for giving me this kind of a platform where you can come and meet the like-minded people to talk about football and talk meaningful football. Like जैसे मतलब fans carry हो जाते हैं, मतलब even I for that matter. कल नेपोली हार गया. We discussed about Napoli. I was just Discuss thinking. on our so I was just much. thinking, and I think somehow AC Milan has cracked the code for Napoli. अगर आप देखोगे ना, Yeah, तो तीनों मैच में नापोली जीत नहीं पाई है एसी मिलान के सामने. So correct. I think now I'm more intrigued to learn about the defensive arrangements of AC Milan. So Uh, कि क्या ऐसा क्या हुआ कि मतलब नापोली इनके सामने कुछ नहीं कर पाई, राइट? सो अगेन data is something that will give us a little more inputs, you know, in terms yeah, of tactics and in terms of what is happening. So ये वाला जो पार्ट है ना, मतलब हम डेटा डेटा बात करते हैं, तो ये वाला पार्ट मतलब हमने सोचा कि चलो यार, कुछ ऐसा करते हैं कि पता चले कि डेटा आता कहाँ से है. मतलब इट्स नॉट समथिंग दैट इज हैपनिंग इन क्लाउड कि रैंडमली कहीं से आ गया और हमने ऐसे ही एक्स जी बोल दिया, एक्स ए बोल दिया, एक्स जी चेन बोल दिया, राइट? सो uh, प्लेयर ने प्लेयर प्लेयर एनालिसिस कर दिया. तो मतलब हमारा एक वो एक क्यूरियोसिटी था कि यार मतलब डेटा आता कहाँ से है. सो दिस होल एपिसोड और सेगमेंट विल जस्ट अबाउट हाउ इज डेटा कैप्चर्ड इन फुटबॉल. yeah. दैट्स इट. Interesting. क्योंकि I will pick up from where Karan bhai just mentioned कि we want to talk meaningful football and data around football. In fact, any sports we are specifying it into football because Karan bhai has made so much of an effort to build up so many research up and build so much of content for us to speak around data. And I was the moment when we had this episode with Karan bhai, I felt that करण भाई इज जस्ट टू गुड फॉर अस टू लीव हिम आफ्टर जस्ट एन एपिसोड. में तो बहुत मन किया कि इनको बोलूंगा कि एक एपिसोड के बाद लेट्स ट्राई समथिंग न्यू बिकॉज डेटा करण भाई ज्यादा लोग कर नहीं रहे हैं, बट it's just become so important right now in this modern day age and culture, right? And it's more about simplifying this understanding so that it reaches a lot more people who are Yeah. new to the game, who are exploring the game just with us. क्योंकि जैसे मैंने बहुत बताया, 20 साल पहले जब 15 साल 18 साल पहले जब फुटबॉल खेलता था, तो उस टाइम पे इतना कुछ अवेलेबल नहीं था, राइट? Hmm. रॉ टैलेंट आता था. बट यहाँ पर क्या है कि डेटा है, तो द स्काउट्स आर ऑल्सो डूइंग दैट जॉब लिटिल बेटर. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, आई थिंक आपका कुछ हिस्ट्री से नाता है. आपने बताया था आपको हिस्ट्री पसंद है, जस्ट लाइक व्हेन वी वर डिस्कसिंग द अदर डे. व्हाट वाज हाँ इट अबाउट? बिल्कुल यार. बिकॉज आई थिंक एंड ऑफ कोर्स मैंने काफी बार हमारे पॉडकास्ट में बोला आई एम currently doing my sports management masters from Mumbai Global Institute of Sports राइट. Business, and हमें बार बार यही बोलते हैं कि the importance of getting your history facts right is just because so we are not एक not only wasting time doing the same things that people in history did it, and secondly I just it gives us patterns, it gives us trends that we could probably follow up. So मैंने सोचा कि now that we are trying to understand the evolution of data collection, why not start from the first possible first memory of data collection. And Karan bhai, I'm sure you have someone very interesting to हाँ. tell us a story about तो Charles या Reap. तो आई थिंक historically speaking, there is one guy called Charles Reap. Okay, so I'll Yeah. just add it here. This guy. So ये बंदा ये मतलब he बंदा was in the Royal Air Force. देख के लग रहा है बहुत पूरे जिंदगी बहुत डेटा में काम किया है, और कुछ नहीं, लगता ये ही एयर फोर्स का बंदा है और ये एयरफोर्स है. फुटबॉल फैन था हमारे जैसे. ठीक है, अच्छा. उसका उसका क्लब मतलब उसका जो मतलब लेक्चर जो है अपन बोलते हैं ना, जो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी और आउट ऑफ योर लव फॉर द गेम. तो आर्सेनल या. का जो चार्ली जोन्स करके कोई था उस टाइम पे, और हर्बर्ट चैपमैन का टैक्टिक था. हर्बर्ट चैपमैन वाज अ मैनेजर दैट टाइम. ओके, तो जो आर्सेनल का जो राइट हाफ था चार्ली जोन्स, उसका लेक्चर वो अटेम्प्ट करता था.
and he was a part of World War II. This guy, you know, Oh, and अच्छा. and he it was his idea actually. मतलब जो इंग्लिश फुटबॉल में आया था इन टर्म्स ऑफ कि मतलब हमको मैच एनालाइज करना चाहिए, राइट? मतलब और उसका एनालिसिस था कि कन्वर्जन रेट नहीं था क्लब का, ठीक है? Conversion. Correct. हाँ, तो उसका पहला मतलब जहन में ये आया कि इंक्रीज इन कन्वर्जन रेट कुड इंक्रीज देयर गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी। सो वो शॉर्ट हैंड जो होती है वहां ऐसा 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 होता है। मतलब ये भाई साहब के खुद के हैंडराइटिंग है। वो एफए कप Oh, फाइनल एट वेम्बली, देखो आप डेट पे लिखी हुई है। और बहुत यू नो जो आप अपन देखते हैं ना साइड लाइन में मैनेजर कुछ लिखता रहता है, मैनेजर के हाँ, असिस्टेंट्स कुछ लिखते रहते हैं। सो correct. I'm guessing this is something similar to what he did long time back. All right. मतलब we think that ये लोग टीवी में क्या देखते हैं, ये लोग क्या बुक में पढ़ाते हैं। देयर वाज लाइक मीम्स की राशफोर्ड एंड ओले का मुझे याद है 2 सीजन पहले कि यार तुम इधर पेनल्टी मारना, और वो छोटे से स्टिक Exactly. फिगर से बॉल करके समझा रहा था। तो ये वो वैसा वाला सीन नहीं होता भाई साहब यहाँ पर। इट्स नॉट समथिंग दैट वर्क्स दिस वे इन फुटबॉल। एंड तो ये तो मैं तो बहुत बोल पहले की बात है। दी इंटरेस्टिंग पार्ट इज जो आपने हमें डॉक्यूमेंट भेजा था वहां पे लिखा था दिस पर्सन चार्ल्स री भाई साहब ही रीजनड दैट अ मार्जिनल इंक्रीज इन द अपॉर्चुनिटी कन्वर्जन रेट वुड इंक्रीज द टीम स्कोरिंग from average या of a 2 per game to 3 per game, which is like हाँ a big gap, right? हाँ। तो और अभी क्या हुआ कि ही ब्रेंटफोर्ड का मैनेजर था जैकी गिबॉन्स। तो Oh, उन्होंने इनको एडवाइजर बनाया 1951 में। और हाँ. जो आपने चीज बोली, ही इम्प्लीमेंटेड इट फॉर ब्रेंटफोर्ड फर्स्ट। Oh, and अच्छा. and there were a lot of criticisms as well about this tactic, to be honest, later on. बट ये क्रिटिसिज्म तो रहेगा क्योंकि आपने कुछ इंट्रोड्यूस किया है ना नया, तो उसका हाँ. प्लस एंड माइनस ऑफ कोर्स होगा। दैट्स अ टोटली डिफरेंट स्कूल ऑफ थियरी इन फुटबॉल की क्या उसका माइनस पॉइंट है और उनका जो टैक्टिकल इन्फ्लुएंस था, क्योंकि वो लॉन्ग बॉल गेम ज्यादा प्रेफर करते थे वहां हाँ, पर। लॉन्ग बॉल. मतलब उसका क्रिटिक ये था, हाँ, लॉन्ग बॉल ज्यादा प्रेफर आज करते थे। आज तो तक इंडिया इस में यही चलता है। इंडियन फुटबॉल का भी शायद क्रिटिसिज्म यही है कि अभी तक वो लोग लॉन्ग बॉल फुटबॉल ज्यादा खेलते हैं, राइट? या लॉट ऑफ टाइम आई थिंक आईएसएल अपन देखते हैं कि यार ये सब बहुत हैफजार्ड हो जाता है। बट लॉन्ग बैक इंग्लिश फुटबॉल हैड द सेम काइंड ऑफ प्ले स्टाइल, बट देन दिस गाय चेंज। सो अल्टीमेटली यहाँ पर आती है बात कि यार ये तो हिस्ट्री हो गई, तो अभी इमरजेंस कहाँ से हुआ हमारे डेटा का, राइट? कि हम डेटा कैप्चर करें। तो आपको पता है यहाँ पर जैसे यू नो एवरीवन इज अफिलिएटेड विद समवन, राइट? या. लाइक लाइक व्हेन यू अफिलिएट इंग्लिश फुटबॉल का उनका पूरा है, जैसे फीफा है तो एंटायर गवर्निंग बॉडी, यूएफआ इज फॉर द यूरोपियन फुटबॉल बॉडी, राइट? सो सिमिलरली दैट वे देयर आर कंपनीज जो डेटा कलेक्ट करती है। ऑल राइट. इंटरेस्टिंग. तो ये कि लोग का काम है। हाँ स्टैट्स परफॉर्म को तो काफी जगह देखा हूँ मैं. एंड डेटा इन इंडिया, आई से डेटा इन स्पोर्ट्स in India especially, because I am doing this course over here, it's very scarce. And when it comes to data collection companies, मैंने ऐसे भी सुना है कि भाई there are dedicated sports companies who do a हाँ lot of their work to collect their data, and then they also sell this data to other leagues हो हाँ गया, team हो गया, to for हाँ a lot of amount of money. पैसा बहुत है यहाँ पे. हाँ हाँ। तो आपने जो बात की ना, वो अब वो बात पे आते हैं। मुझे डेटा कलेक्ट करना आपका काम है, फॉर एग्जाम्पल आपकी हाँ. कंपनी का काम है डेटा कलेक्ट करना, बट यू आर नॉट द वन हु होल्ड द राइट ओवर दैट Oh, डेटा। ओके, सो फॉर okay. एग्जाम्पल स्टैट्स परफॉर्म ईपीएल का ऑफिशियल डेटा कलेक्शन पार्टनर है, राइट? बट देन अच्छा. देर इज एफडीसी, इट इज कॉल्ड फुटबॉल डेटा को। हाँ. वो है ऑफिशियल राइट्स होल्डर ऑफ यूके फुटबॉल डेटा इंक्लूडिंग ईपीएल ऑफ कोर्स। ऑल राइट. इंटरेस्टिंग. हाँ तो ऐसा हाँ कोई स्पेशल रूल है क्या कि होल्डर और जो मतलब ऑफिशियल जो कंपनी है जो डेटा निकालती है, एंड राइट्स होल्डर्स जरूरी है क्या कि अलग होना चाहिए कि नहीं, बिकॉज दिस इज द हाँ, केस ओवर मतलब हियर? हो भी सकता है, जैसे लीगा का नहीं है, इनका है। तो ये डिपेंड अच्छा. करता है कि आपकी, क्योंकि ईपीएल इज वेरी वाइड, क्योंकि यहाँ पर हाँ, हाँ. 3 लेवल तक आपका जाता है। मतलब इट्स नॉट जस्ट ईपीएल, आई मीन इंग्लिश फुटबॉल इज वेरी वाइड। इट हैज चैंपियनशिप डिवीजन. एंड देन टीयर 2 टीयर 3,
तो मतलब करेक्ट। आप देखोगे तो इंग्लैंड में आई थिंक देयर आर मोर देन 600 टीम्स छोटी मोटी लेवल की, राइट? तो हाँ सबका फुटबॉल। और सभी टीम का मैं नहीं बोल रहा हूँ कि डेटा पूरा होगा ट्रैक, बट ये क्या होता है कि जैसे फोर्थ लेवल या थर्ड लेवल की अगर मतलब कोई टीम होगी, तो स्काउट के पास अगर वो डेटा होगा ना, देन स्काउट कैन ब्रिंग दैट चाइल्ड अप इफ इज इन यूथ एकेडमी ऑफ से टियर 2 करेक्ट। टियर 3 लीग, तो वहां से भी उनको उठा सकते हैं इफ दे हैव अ डेटा, क्योंकि दैट डेटा गिव्स यू अ बेंचमार्क कि top professionals are at this level, and if this guy is dribbling at this pace per game, then it means he has a potential. तो उसको करेक्ट। स्काउट और को मेरे को physically जाने की जरूरत नहीं पड़ती अभी। एग्जैक्टली और मेरे को ऐसा लगता है कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे आपने अभी कहा, अभी तो शायद 600, कंसिडरिंग दैट सो मेनी इंग्लिश फुटबॉल क्लब्स इन इंग्लैंड, बट देयर व्हेन देयर विल कम अ टाइम जहां हमें हर डिवीजन के हर क्लब के बारे में बेसिक अमाउंट ऑफ डेटा होगा, तब तो आई थिंक इट्स जस्ट गोइंग टू ब्लो मेनी पीपल्स माइंड्स, राइट, बिकॉज काफी सारी सिमिलैरिटीज निकलेंगी, काफी सारी राइट। डिफरेंसेस निकलेंगी। द सब कुछ कंपेयर करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स कितने, मेट्रिक्स कितने ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे, एंड आई एम जस्ट एक्साइटेड टू सी व्हेनेवर दैट हैपेंस, राइट? हाँ, 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 ऑफ कोर्स, क्योंकि आप देखो यहाँ पर भी एक जीनियस स्पोर्ट्स, लाइक इफ यू कैन सी इन द स्क्रीन, तो हाँ हाँ हाँ। जीनियस स्पोर्ट्स है वो उनका ट्रैकिंग पार्टनर है। तो ओ, तीन तो एंटिटी यहाँ हो गई, जीनियस स्पोर्ट्स, स्टैट्स परफॉर्म एंड एफडीसी, जस्ट इन हाँ। यूके। और फिर ये तो लोग शायद तीन लोग मिला के रोज रोज बात, रोज क्या, आई मीन आफ्टर वीकली और मंथली या मैच वाइज में मतलब दे मैच, मस्ट बी हैविंग रेगुलर मीटिंग्स। हाँ, 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 आई मीन ऑफ कोर्स दे शुड बी हैविंग इट, बिकॉज इट्स क्वाइट अ बिजनेस पार्ट ऑफ द गेम, क्योंकि करेक्ट। डेटा किसको कितना चाहिए उसको आप सेल कर सकते हो, एज यू सेड, राइटली सेड, बट देन हु नीड्स इट, you know हम्म। like for example someone like Chelsea. I mean, I'm not like not pinching or pinpointing it. But I'm saying just someone like Chelsea who spent so much money. This one winter transfer, which is I think historic for a winter transfer to happen. This या amount of money in winter transfer, and then later on they are doing scouting for छोटा लीग में, यूके में, तो वहां पर ये डेटा काम आ सकता है, जैसे आपने बोला, तो करेक्ट। उनको जरूरत लगेगी। हम्म। और अभी एग्जाम्पल जैसे आपने बताया ना, इनका, तो वैसे इनका सीरिया का भी ये स्टैट्स परफॉर्म है, स्पोर्टेक सॉल्यूशंस करके वो बुंडेसलीगा के लिए, और बुंडेसलीगा का अमेजोन ये वेब सर्विसेज से भी टाई अप है, तो वो मतलब क्लाउड पे जो डेटा मतलब डालते हैं, और वहां से डेटा इनोवेशन का काम है, एनालिसिस का काम है, वो एडब्ल्यूएस सपोर्ट करता है, सो दे आर और ये जो यू नो लास्ट पॉइंट पार्टनर। में लिखा है, एट, हाँ, AWS वाला ही, बुंडेसलीगा वाला पॉइंट फॉर इनोवेशन इन डेटा, इन डेटा एनालिसिस, आपको क्या लगता है, व्हाट काइंड ऑफ इनोवेशन डज दे, व्हाट काइंड ऑफ इनोवेशन आर दे टारगेटिंग यहाँ पे? तो आपको जैसे एक बार डेटा मिल जाता है यहाँ पर, जैसे कि एडब्ल्यूएस क्या है कि आपका सर्वर पे डेटा जाता है, राइट? सो हम्म। यू डोंट हैव टू होल्ड डेटा फिजिकली, ए आपको हार्ड डिस्क वगैरह नहीं, तो आपका तो पहले डेटा क्लाउड में चला गया जो एडब्ल्यूएस होस्ट करता है, फिर वहां से यू ओपन अप जस्ट लाइक अ सॉफ्टवेयर, इन टर्म्स ऑफ कि ओ, आपको जितना भी कस्टमाइजेशन चाहिए आपको एडब्ल्यूएस करके देगा, बिकॉज एडब्ल्यूएस होस्ट अ लॉट ऑफ SaaS कंपनीज का डेटा एज वेल, राइट? तो फिर आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन करके आपको उनका पूरा सा एक समझ लो कि भाई अंडर 17 का ये पूरा डेटा निकालना है इनके वहां से, या पूरा क्लाउड होस्टिंग अलग अलग आपको कंपार्टमेंटलाइज करना है, वो सब एडब्ल्यूएस उनको प्लेटफॉर्म दे सकता है टू फास्टन द प्रोसेस, because I mean AWS is of course hosting lot many IT companies ka softwares, or and cloud client data as well हाँ, right now। AWS फेमस है हर जगह, मैंने काफी सारे और जगहों में भी हाँ, इनका नाम देखा। क्योंकि करेक्ट। अपना देखो ना, अपना Amazon भी AWS सर्वर पे है, जैसे नाउ फॉर एग्जांपल व्हेन यू आस्क इनोवेशन, तो वन थिंग आई कैन थिंक ऑफ इज, अगर आपने कुछ परचेज किया है, जैसे फॉर एग्जांपल से स्पोर्ट शूज, देन दे विल हम्म। रिकमेंड यू कि आपको सॉक्स बाय करने हैं या जर्सी बाय करनी है, दोज रिकमेंडेशन इज नथिंग बट पर्सनलाइज्ड marketing for based हाँ on the यार। data, same way they can think करेक्ट। of lot of permutation and combinations to come up with। सो और अच्छा। लीगा का भी है, मतलब ऑप्टा स्पोर्ट्स है वो फ्रेंच के साथ है, फ्रेंच लीग के साथ है, हाँ, वाइस एंड और ऑप्टा, ऑप्टा ने धीरे धीरे काफी सारे अलग अलग वर्टिकल्स बना लिए हैं, देयर इज ऑप्टा जीव, हाँ, देयर इज
इंडियन डेटा अलग वो लोग कलेक्ट करते हैं, स्पेनिश डेटा अलग कलेक्ट करते हैं, फ्रेंच एंड ऑल्सो आई हाँ थिंक अलग है। slowly they are really one of the pioneers in terms of providing data, not only फुटबॉल ही नहीं नहीं बहुत देखा सारे मैंने, मैं स्पोर्ट्स में। हाँ आईपीएल में क्रिकेट का ऑप्टा जीव है शायद, देयर इज एक टेनिस में भी ऑप्टा जो करके था, तो रियली ऑप्टा इज रियली बीइंग वन ऑफ द फ्रंट runners when it comes to these data हाँ providers, and I'm sure more and more companies या leagues या teams हो गई Karan bhai, I'm sure they put out a lot of emphasis on what दे Opta डू। does and provides, right? और जैसे आपने बताया ओप्टा है, तो वैसे भी मतलब वॉइस स्काउट है, मीडिया कोच है, स्टैट्सबॉम्ब, स्टैटिस्टिक पोर्टल, मतलब बहुत सारी ऐसी डेटा प्रोवाइडर्स है। They Okay. houses the data, and हाँ probably they'll buy the data as well, and probably in get in touch with other leagues. मतलब छोटी मोटी बहुत leagues है, like there are leagues in Norway, in Finland, वहाँ पर भी मतलब यूरोप में ही है, मतलब of course, but they are also playing small leagues, so they are not that big. तो वहाँ पर भी डेटा की तो जरूरत है ही। तो there are many हाँ providers who will be catering them, which I don't know about right now, frankly, क्योंकि हाँ यूरोप इज क्वाइट वास्ट इन दैट टर्म, बट देयर आर जस्ट फोर लीग्स दैट वी स्पीक अबाउट: स्पेनिश, फ्रेंच, इटालियन एंड इंग्लिश, राइट? हाँ करेक्ट। और एंड मुझे जर्मन, ऐसा ऑफ लगता है कोर्स। the another aspect that data in football will do is probably they will bring a lot of players from lesser known localities into the एग्जैक्टली, limelight, क्योंकि नाउ एग्जैक्टली। काफी सारे लोग डेटा एनालिस्ट यूज कर रहे हैं। पहले 20 साल पहले आई थिंक when there was no such thing as data collection and trying to analyze data, people probably would not go to certain places just with the stigma कि भाई यहाँ से क्या ही player आएंगे, यहाँ से कभी आए हाँ, नहीं। बट नाउ आई फील that entire thinking might change because of data. yeah. तो एक आई थिंक एक नॉर्वेजियन प्लेयर की कुछ बात हो रही थी, आई फॉरगॉट हिज नेम, मतलब यूनाइटेड के साथ ही कुछ नाम जुड़ रहा था उनका। अच्छा। आई थिंक वो मतलब उनको छोटा हालैंड बुलाते बुलाते, इसाक छोटा है। यानसेन एरन करके, हाँ। अच्छा। यानसेन एरन करके। इंटरेस्टिंग। तो आई मीन मैं बोलूंगा कि यूनाइटेड के बारे में कुछ चीजें भूल जाना ठीक है, ज्यादा भी दुख नहीं देती हमें। हाँ मतलब है एक, मतलब एक छोटा प्लेयर है वो, अंडर मतलब ग्रेजुएशन में होगा वहां पर। तो ऐसे ऐसे हाँ लोग आते हैं जो वहां से आपको लेकर आते हैं एकेडमी में, राइट? तो आई हाँ। मीन ये तो हो गई बात बिजनेस साइड एंड the brand side of data collection. But there are हम्म। now what interests me, what actually bring to us to this topic is कि collect कैसे होता है data. मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन। यस। सो या आपको क्या लगता है, मतलब मतलब ऐसा ही थोड़ी आपको पता चल जाएगा कि ये इतना पासेस हुआ, इतना ड्रिबल्स हुआ, इतने ओवरलैप रन्स हुए, इतना सेव्स हुआ, या इतना टैकल्स हुआ, इतने क्रॉसेस गए, इतनी कॉर्नर्स आई। कितना डेटा रहता है एक गेम के अंदर। आई थिंक देर आर बिलियंस ऑफ डेटा दैट इज जनरेटेड थ्रू आउट द एंटायर टूर्नामेंट। करेक्ट है। छोटा एंड प्लस छोटा डेटा। बिकॉज at any given period of time in a football match, there are at least 18 to 20 moving parts, right? And when and wherever the ball goes, मैं तो जब सबसे छोटा था ना, I the most fascinating fact for me was how they used to probably calculate the co- distance covered by each players during the matches. तो मैं सोचता था हाँ। कुछ ना कुछ फिक्स्ड उनके पास था ही। then they used to add every player कहाँ से कहाँ भाग रहा है, कितने टाइम के लिए भाग रहा है, then add so at that time I knew I was just blown away by the work that data does in football, man. सो जैसे आपने बताया ना कि कितना किलोमीटर रन किया, तो आपको पता है हाँ ब्रेंटफोर्ड के सामने जब यूनाइटेड हारी थी ना इस सीजन 4-0, हाँ जब हाँ शुरुआत में, तो देयर वाज दिस ईटी, मतलब टेन हैग ने क्या किया था कि ही मेड दैट, जैसे 14 किलोमीटर भागे थे ब्रेंटफोर्ड के प्लेयर एवरेज, एंड यूनाइटेड का कुछ आई थिंक 7 या 8 या ऐसा कुछ था, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट नंबर। So what he did was he made United players run 14 kilometers, and he also ran with them. ओह, कि मतलब लीडिंग बाय कि प्लेयर है, एग्जांपल। हाँ, लीडिंग बाय एग्जांपल ऑफ कोर्स। तो हाँ वहां से फिर मोटिवेशन हुआ, ऐसा ही थोड़ी ना हम लिवरपूल को हराया फिर शुरुआत में, हाँ, राइट? ट्रू। एंड या आई मीन द फर्स्ट मैच वी वॉन वाज अगेंस्ट लिवरपूल दिस सीजन, आई रिमेंबर।
हाँ, और ये तो अच्छा है। आई फील दिस इज अनदर एस्पेक्ट where data is being used, where it probably one team using data in a particular way sets up a benchmark, दूसरे टीम को हाँ, किसी मैच में आके हराती है, then ऑफ the कोर्स, losing team also picks on from there। तो इसके दैट्स व्हाट। in in applications are probably infinite, right? हाँ, हाँ, हाँ। जैसे ट्रैकिंग का आपने बताया ना, तो जीपीएस सिस्टम, एज़ वी ऑल नो, राइट? तो वो हाँ, आपको डिस्टेंस का अंदाज़ा दे देगा। देन वेयरेबल्स या भी है, जैसे आपको पता है, मतलब यहाँ पर वो चेस्ट पे वो एक वेस्ट वगैरह पहनते हैं, उस वहाँ पर डिवाइस लगाया जाता है। दैट आल्सो ट्रैक्स देयर मूवमेंट इन टर्म्स ऑफ कहाँ-कहाँ गए पिच पे, कितना भागे, और क्या-क्या उनका हार्ट रेट वगैरह है, और देयर फिजिकल लेवल्स एज़ वेल। हम्म, तो स्टेमिना गॉज करने के लिए, राइट? एंड फिर एंड डेटा का जो फिजिकल एस्पेक्ट आता है ग्राउंड पे, पोजीशन प्ले जो बोलते हैं ना हम, जैसे हाँ, हाँ, जैसे हम टेक्निकल बोर्ड पे क्या करते हैं कि यहाँ इसने यहाँ किया, इसने ये किया, फिर ये आगे गया, फिर ये, तो ये क्या होता है कि आप एनालाइज करते हो गेम को बेस्ड ऑन द कैमरास दैट आर प्लेस्ड इन डिफरेंट लोकेशन, वहां से बनती है राइट, आपकी पासिंग की डेटा या क्रॉसेस की डेटा, कि यहाँ से यहाँ पास हुआ था ये गेम में, यहाँ से शॉट लिया गया था ये गेम में, और यहाँ से प्लेयर ने की पास या असिस्ट दिया था। So all the 22 players on the field are tracked, and ओ, the images are then translated into data points. Ki data points in the sense ki pass, dribble, shot, goal. क्रॉस एंड ऑल, या हाँ, हाँ, इंटरेस्टिंग। एवरीथिंग आर देन ट्रांसलेटेड। तो ये स्टैट्स परफॉर्म है ना उनका, जो स्पोर्ट्स व्यू करके एक कैमरा आते हैं, जो ये अभी स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, तो ये सब हाँ, छोटे कैमरा आपने दिखे होंगे, मतलब वहां पे ऐसे बॉल लग जाती होगी कभी कभी भी। तो दे हैव ऑफ कोर्स रिप्लेसमेंट कैमरास एंड स्टैंड बाय कैमरास एज वेल, ऑफ कोर्स, नियर द पिच, बट ये कैमरा और होते हैं जो कैप्चर करते हैं। yeah, I feel the cost of these cameras would also be immense, right? Because they are at all times different kinds of. And I was thinking कि in how is the handling, how does the handling part of these cameras work? कोई बैठा रहता है पूरे मैच अलग अलग कैमरास को zoom in zoom out किसी प्लेयर में फिक्स करते हैं कि या आई थिंक एक तो मैनुअल कैमरा वाले रहते हैं जो मैनुअल, या कैमरा पकड़ के खड़े रहते हैं, राइट? और फिर हाँ, ये जो है ना, ये बॉल पे ट्रैक करते हैं, जो कोई कोई जो बॉल की मूवमेंट्स होती है ना, वो ट्रैक होती रहती है यहाँ से। सो दे आर, ओ, जो इसमें आपने अगर पीछे देखा होगा तो ऑप्टिकल ट्रैकिंग भी है। सो व्हाट डज ऑप्टिकल हाँ, ट्रैकिंग डू, राइट? सो इट डज द सेम थिंग वेयर द मूवमेंट्स आर ट्रैक्ड। हाँ, पूरा जो करेक्ट, मूवमेंट, जैसे एक प्लेयर का है ना, जैसे फॉर एग्जांपल इस मैच में कामाविंगा है, तो ये कैमरा कामाविंगा पे ही फोकस करेगा। फिर एक होगा ओ, बेंजेमा, तो वो बेंजेमा पे ही फोकस करेगा। फिर बॉल कैमरा बॉल पे ही फोकस करेगा। तो पूरे टाइम फोकस टू अ स्पेसिफिक प्लेयर, जैसे कि आपने बोला या कामाविंगा ऑल और 22 बेंजेमा। प्लेयर्स, हाँ। How is that done? Like एक बंदे पे फिक्स कर देते हैं and then wherever he runs at all times that camera keeps following, Yeah, scans. right? Yeah, it scans from different angles, and then they have west as well, जहाँ पे उनका डेटा मॉनिटर होता है इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस कवर्ड। ग्राउंड का भी डिस्टेंस कवर्ड आपको ऑप्टिकली पता चल जाता है, जैसे 45 यार्ड्स होते हैं, तो दैट यहाँ से यहाँ ये है, तो उतना उनका पर रन में उनको इतना कवर किया, फॉर एग्जांपल 20 यार्ड्स, 30 यार्ड्स, तो दे विल गेट टू नो दैट एज वेल, एंड टू सपोर्ट दैट इज अनदर वेस्ट जो ये लोग पहनते हैं, वहां का भी डेटा उनके पास रहता है, बट मोस्टली वेस्ट डेटा जो है वो क्लब लेवल पे यूज होता है, ना कि आपका मैच डेटा में यूज होता है, क्योंकि वो हाँ, क्लब के और प्लेयर की हेल्थ और प्लेयर के परफॉर्मेंस के लिए है। हाँ, और यहाँ पे आपने गूगल डॉक्यूमेंट में जो हमें भेजा था वहाँ पे लिखा भी था कि फॉर एवरी मैच वी हैव 3 guys using bespoke software which overlays which हाँ, overlays a live video feed on a pitch graphic. One guy watches the home team, another हाँ, हाँ, watches the away team, and the third is essentially a data checker. डेटा चेकर, यस। तो Oh, एवरी मैच, interesting. मतलब ईच मैच हैज से 1600 to 2000 pieces of data that is given, हाँ, राइट? और ये मतलब आपको पोटेंशियल, मतलब पोजिशनल डेटा, फॉर एग्जांपल हम बात करें, डिस्टेंस कवर्ड, पोजीशन, स्प्रिंट्स, हाँ, जैसे स्काउटिंग के लिए आपको एक्सपेक्टेड प्रोग्रेस के लिए जब होती है बात, तो हाँ, वहां एक होता है, पहले होता है पोजिशनल डेटा जैसे आपने बताया, ठीक है? हाँ, एक होता है मैच इवेंट्स, जो प्लेयर स्पेसिफिक नहीं है पर मैच स्पेसिफिक है, टैकल्स, फाउल्स, कॉर्नर्स, नंबर ऑफ कॉर्नर्स, नंबर ऑफ टैकल्स, देन जो ओवरऑल आपका जो स्टैट्स, मैच का स्टैट्स जब दिखेगा आपको, तो वहां पर आ जाएगा। तो छोटे से छोटा, जैसे थ्रो इन भी ले लो, क्रॉसेस भी ले लो,
या बड़े से बड़ा हाँ गोल जैसा मैच इवेंट ले लो, तो ऐसी सब इवेंट हो गए, देयर आर 2000 ऑफ सच इवेंट्स आर रिकॉर्डेड पर गेम इन 90 या मिनट। आई मीन क्या आई फील एक और चीज जो आपने भेजा था मैंने पढ़ा था लाइक रिगार्डिंग पोजिशनल डेटा वाज दैट प्लेयर्स लोकेशन इज यूजुअली रिकॉर्डेड 25 times per second. हाँ, Such पर सेकंड, small, यस, yeah, I mean पर such सेकंड। small and big data points in a match that these people capture in Bundesliga. They are close to 3.6 million data या points दैट्स व्हाट every आई सेड। single. हाँ, Oh yeah, I mean because at some point of time I feel कितने कितना ही आप मैनुअली यूज कर पाओगे आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम इट हैज टू बी हाँ, अ लॉट ऑफ डेटा माइनिंग एट ऑल ऑटोमेशन, टाइम्स या ऑफ कोर्स ऑटोमेशन विल कम अप। automation and also I mean these are just numbers जो कोई and I'm sure कितने सारे लोग जो कि इतने टाइम से फुटबॉल फॉलो करते आ रहे हैं but to understand that they like data is doing so हाँ, much to just change and I feel राइट, अगले 5-10 साल में इसका application and all even more someone will just आराम come से। and see, इससे हम ये भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं probably might change the way football is being played again so एग्जैक्टली। सो नाउ यू सी, आपको पहले सिर्फ वो मैनेजर रहता था वो टच लाइन पे एंड शाउट करना, ये वो ट्रेडिशनल मैनेजर्स। नाउ गोल हाँ होता है या कोई क्रिटिकल मोमेंट्स होती है गेम में, सो देयर आर मैच एनालिस्ट एज वेल जो उनके बाजू में रहता है। अब पेप हाँ बातें करता रहता है किसी से, वी हैव सीन लाइक और फिर वो अपने टैब में देखता रहता है, फिर ये टैब में बातें करते हैं। तो ये क्या होता है कि ये रियल डेटा जो ये कैप्चर हो रहा है वो हमको तो मिलेगा ही ऑफ कोर्स, पर उतना डिटेल लेवल में नहीं मिलेगा। मतलब सोफा करेक्ट स्कोर पे जाओगे, एफबी रेफ पे जाओगे, आपको लाइव मैच पे जाओगे तो आपको ये अंडरस्टैट में वहां से डेटा मिल जाएगा आपको ऑब्वियसली। पर ये क्या होगा कि ये लोग को रियल टाइम डेटा वहां पे मिलता है, तो दे विल नो कि इज फॉरवर्ड पासिंग लाइंस ब्रेक कर रहे हैं क्या ऑफन, मतलब मिडफील्ड में कोई गैप है, या आपका कोई विंग बैक कोई ओवरलैप रन नहीं कर रहा है ज्यादा जो यूजुअली करता रहता है, मतलब प्रीवियसली जैसे डायलॉग का फॉर एग्जांपल है कि हर 45 मिनट्स में वो 2 to 3 ओवरलैप्स लेता है फॉर एग्जांपल, तो इस बार उसने एक भी हाँ नहीं लिया, तो क्यों? जो डिफेंस का हाईलाइन है या दे आर लो और एज प्लान्ड, सो हाउ मच इज योर टीम रनिंग, वो रनिंग कम है क्या है, तो वो चिल्लाते हैं बेस्ड ऑन द डेटा दैट द एनालिस्ट विल गिव, राइट? करेक्ट सो करेक्ट ये बात होती है कि आपका जो पूरा एक अच्छा फॉर एग्जांपल में ये लेट मी हाँ सी देखा इंटरेस्टिंग इफ पार्ट है ये बहुत if we इंटरेस्टिंग can है I think if we can work this out, let's see, I'll just share my screen and see जैसे लिवरपूल सिटी का मैच हुआ था, सिटी लिवरपूल आई मीन 4-1, या तो ये था, कैन यू सी माय स्क्रीन? हाँ हाँ अभी वो लोड हो रहा है अब दिख रहा है यस यस आई कैन सी इट नाउ हाँ, तो ये है फील्ड डेटा, मतलब फील्ड का, जैसे पोजिशनल प्ले जैसे हमने बात किया, तो ये ओपन प्ले से जैसे रॉड्री ने राइट ब्लॉक शॉट, मतलब असिस्ट था हाँ रियाद मारेज का, शॉर्ट टाइप राइट फुट, रिजल्ट वाज ब्लॉक, एक्सजी 0.04। तो ये स्टार किया हुआ है ना, वो गोल है, जैसे हाँ ओपन प्ले डी ब्रुयना राइट फुट गोल, एक्सजी 0.49, फिर उसका मारेज का ओपन प्ले लेफ्ट फुट, फिर असिस्ट होगा ग्रिलिश का फॉर एग्जांपल, तो यूलियन आल्वारेज का गोल था, राइट, गुंडोगन हाँ का था, तो वो गोल था 0.5। तो यहाँ पर भी है सेव्ड शॉट होगा डी ब्रुयने का, यहाँ से उसने लिया था कॉर्नर से, तो ये भी है। तो आपको पता चलता है कि लिवरपूल ने उतना अटैक किया नहीं है यहाँ पर, देखो, हाँ राइट? करेक्ट साला का उनका एक आई थिंक गोल था, जोटा का असिस्ट था, बस वही है बट ये जो साला उनका। का जो गोल था उसका एक्सजी इज बिलो 0.1 ना हाँ हाँ हाँ, 0.09, बिकॉज वहां से गोल जाना मतलब जो सिचुएशंस थी, डिपेंड, बिकॉज एसजी ऑल्सो डिपेंड ऑन लॉट ऑफ फैक्टर्स इन टर्म्स ऑफ कि कितने प्लेयर्स ब्लॉक कर रहे थे शॉट को, गोलकीपर का पोजीशन क्या था, और वो वाज द प्लेयर मेकिंग द रन, और वाज इट जस्ट अ टैप इन, और मतलब वो प्लेयर को पीछे से आके उनको रन निकाल के रन लिया था, या उनको सिर्फ ऐसा बैठा हुआ शॉट सिर्फ फ्लिक करना था, तो ये सब फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जब आप एक्सजी काउंट करते हो। इट्स जस्ट नॉट कि Yeah. जैसे आप अगर फीफा 23 खेलते होंगे तो आपको पता है वो आता है, अभी उन्होंने नया फीचर शुरू किया हुआ है कि एक्सजी दिखाते हैं आपको कि ये सिचुएशन में आपने गोल मारा तो इसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम था यहाँ से। बट हाँ दैट बीइंग सेड, तो यहाँ सबका एक्सजी देखो आप, हाँ मतलब मतलब ज्यादा ही था मतलब क्या आराम एक से बनाया गोल, आप बोल सकते हो और सिटी ने। मैं क्या सोच रहा था जस्ट टू बी मोर क्लियर अराउंड इट कि
अगर जितने एक स्ट्राइकर का एक्सजी जितना ज्यादा होता है, डज इट मीन दैट डिफेंडर, द सामने वाले का डिफेंडिंग का थोड़ा कितना खराब हालत होता है। खराब था, हाँ, या यू कैन से इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ना, कि अटैकर भी यस, अच्छा था एंड ही वाज एबल टू प्ले अराउंड और जस्ट ब्रीच द बैक लाइन ऑफ द राइट, ऑपोजिशन डिफेंस। एग्जैक्टली। जैसे यहाँ पर है सिचुएशन फ्रॉम कॉर्नर फॉर एग्जांपल, ब्लॉक हुआ शॉट, हाँ 0.03 एक्सजी था, राइट? तो आपको पता है यहाँ से देखो 0.09 मारेस का मिस शॉट है, तो सेम है साला का, तो मारेस ने अंदर डाल दिया, मतलब यहाँ से एक्सजी आप मान सकते हो 0.09 है, क्योंकि इज फार फ्रॉम द गोल लाइन। हाँ साला इज ऑलमोस्ट करेक्ट। इनसाइड द पेनल्टी बॉक्स, तो फिर हाँ क्या हुआ, राइट? सो द सिचुएशन इज डायरेक्ट फ्री किक था, देखो आप यहाँ पर हाँ फ्री करेक्ट। किक से एक्सजी था और ये था ओपन प्ले से एक्सजी। सो एज आई सेड, हम्म। सिचुएशन आल्सो प्लेज अ डिफरेंट पार्ट, और डिफेंडर्स का जो भी उनका अरेंजमेंट होती है, उनकी जो सेटअप होती है, तो वो भी मैटर करती है, तो ये बात हमको ध्यान में रखनी होती है। फिर ये जो डेटा है इंटरेस्टिंग। वो आपने जैसे बोला वो 3 फेजेस में जाता है। तो अब ओके। एक सिनेरियो ये है कि डेटा आप कमेंट्री अपन सुनते हैं, राइट? तो हाँ लाइक एज वी सेड, ओके, मॉडरेट टू क्रूज, ओके, वैल्वर्डे। लेफ्ट पे खेल रहा है तो हाँ, लेफ्ट पे खेल रहा होगा क्रूज, तो इसको विनीशियस को मिलेगा, तो टू हाँ विनीशियस, ब्रेकिंग लाइंस, ड्रिबलिंग, ये ड्रिबल पास द राइट विंग एंड कटिंग इनसाइड। सो ये चीज जो होती है वो स्पीकर वो कोडेड लैंग्वेज में उनकी लाइव मैच सिचुएशन फ्रॉम द स्टेडियम मल्टीकैम, कोडेड लैंग्वेज में क्यों बोल रहा होगा वो? मतलब वो उनकी लैंग्वेज जो भी होगी वो, क्योंकि अपन को नहीं पता है, जैसा कमेंट्री बोलते हैं वैसे नहीं बोलते वो लोग, ओह अच्छा, समथिंग डिफरेंट। हाँ या वॉट एवर ओके। उनका एक लैंग्वेज रहेगा, और वो हम आई थिंक हम बाद में बताएंगे कोडेड लैंग्वेज कैसी हो सकती है, उसका भी एक ओह एग्जांपल विल आई विल ट्राई टू शेयर। ओके। और एक होता है राइटर जो डेटा राइट हाँ करता है, सो इवेंट डेटा जो भी रहता है ना मैच का, सो हाँ दैट सिस्टम में वो इनपुट करता है कि ये पास, ये स्कोर, ये क्रॉस, ये असिस्ट, ये ड्रिबल, राइट? सो एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इट विल बी इंटरप्रिटेड वहां पर लाइव, और फिर हाँ दो बंदे होते हैं जो वीडियो देख के उसका जस्टिफाई करते हैं कि ओके कोई गलत तो नहीं बोल रहा, मतलब हाँ शॉट आपने बोला डिब्रोइने, बट मैं बोलूंगा ओके नो इट रिफ्लेक्टेड थ्रू से वन डाइक, राइट? हाँ तो ट्रू। मेरे पास वीडियो है, तो मैं देख के बोल सकता हूँ कि इट्स डिफ्लेक्टेड, ओके ये लेफ्ट फुट नहीं राइट फुट से था, या ये आउटसाइड द पेनल्टी से था, या तो इनसाइड द बॉक्स था, राइट? सो एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग लाइव, देयर इज अ रिप्ले सीक्वेंस दैट दीज गाइज कैन, जो ऑपरेटर्स होते हैं वो कंपेयर कर सकते हैं रियल लाइफ से, और ये तो सोर्स ये जो जो मैंने लिया है वो फीफा से लिया हुआ है, क्योंकि फीफा में भी यही लोग करते हैं, ऐसा ही होता है, मतलब स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है ये। अच्छा, और ये जो स्पीकर होता है, ऑपरेटर होता है, ये दीज पीपल आर दी वंस हु आर वर्किंग फॉर द मतलब सपोज मैनचेस्टर यूनाइटेड और मैनचेस्टर सिटी के अलग ऑपरेटर स्पीकर लोग होते हैं कि नहीं, ये तो दीज डेटा पीपल आर। कलेक्शन, ये डेटा कलेक्शन कंपनी का ही पार्ट आ जाता है, उनका ही जॉब रोल अच्छा, रहता है, these उनसे are लोग का data है। collection companies and यस, of course तो मतलब they are allowed to do it in across different kinds of matches and across different verticals also ना। यस, ऑफ कोर्स, Oh, उनका ये काम pretty रहता ही है, मास्टर डेटा एक रहता है जो प्लेयर नेम जर्सी जो अपन देखते हैं वो होता है, और फिर बाकी में मैच इन्फॉर्मेशन वगैरह होती है वो रहता है, क्योंकि मतलब आइडियली अगर आप देखोगे तो जो डेटा है वो जनरल एक होता है, जनरल प्ले का, जैसे अपीयरेंस हो गया, टोटल मिनट्स प्लेड, सब ऑन सब ऑफ, विंस ड्रॉ लॉसेस लॉसेस, ये फिर होता है अटैक वाला डेटा, गोल्स, एक्सजी, गोल्स फ्रॉम फ्री हाँ किक, जैसे अपन ने देखा अभी, फ्रॉम काउंटर अटैक, फ्रॉम ओपन प्ले, राइट फुट, लेफ्ट फुट, हेडर, पेनल्टी, वॉट एवर, बिग चांसेस मिस्ड, और हिट द वुड वर्क। फिर होता है टीम हाँ प्ले का डेटा, क्रॉसेस, क्रॉस एक्यूरेसी, पास एक्यूरेसी, शॉर्ट बॉल, लॉन्ग बॉल, शॉर्ट क्रॉस, लॉन्ग क्रॉस, बैकवर्ड पासेस, फॉरवर्ड पासेस, या फिर आप थ्रू पासेस, असिस्ट। और फिर होता है डिफेंस का, जैसे ओवन गोल, क्लीन शीट्स, पेनल्टी कंसीडर्ड, क्लियरेंसेस, हेडेड क्लियरेंसेस, एरियल बैटल्स वॉन लॉस्ट, हाँ ये सब डेटा हमको मिलता है, ऐसे ही मिलता है क्योंकि वहां पर ये रिकॉर्ड होता है, जैसे स्पीकर अच्छा टू राइटर एंड राइटर टू अदर ऑपरेटर्स, एंड दैट इज हाउ लाइंस एंड गोल्स एंड जो भी मतलब ऑफसाइड वगैरह का भी डेटा है वो भी वहां से ही होता है शुरू। तो एक एक ओह अपन एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आई मीन आई हैव टू सी इफ आई कैन डू इट।
हाँ, हाँ। ये वाला FC पाइथन काफी तो अमेजिंग चीज है ये तो। ये देखता हूँ मैं। एक सेकंड। ये अगर मतलब हम जैसे बात कर रहे हैं अभी, तो वहां पर भी क्या है कि ये लोग का कोडिंग, और जैसे आपने बोला ना, कोडेड लैंग्वेज, तो दैट्स हाउ आई थिंक प्रोबब्ली दे वुड बी डूइंग इट। सो फॉर एग्जांपल एक एक प्रीमियर लीग मैच के लिए अलग अलग डेटा कलेक्शन कंपनीज करती होगी ना, इट्स नॉट जस्ट वन, राइट? यस, चांसेस आर हाँ हाई। हाँ, ये हो गया, देखा आपका। जैसे H1 H2 है, मतलब होम टीम का प्लेयर का नाम लिख दो फॉर एग्जांपल। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, मैं फॉर एग्जांपल से कोई भी, मतलब आई कैन जस्ट एडिट दीज टैग्स एंड नेम, लाइक कि भाई लिवरपूल यहाँ पर होम था, सिटी था, ठीक है, हाँ यहाँ पर लिवरपूल था, एंड आई कैन नेम प्लेयर से वन डाइक, या फॉर right, एग्जांपल बैकलाइन से शुरू करता हूँ, यहाँ पर डियाज है, ठीक है। हाँ तो ऐसे, मतलब यहाँ से फॉर एग्जांपल पास आया है, तो मैं आई कैन जस्ट से दिस कि ऐड अ टैग। यहाँ पर पेनल्टी भी आ सकती है फॉर एग्जांपल, किसी ने मारी है श्योर तो। 20। हाँ, तो अभी यहाँ से जैसे मैं प्ले करता हूँ, जैसे यहाँ पर आया, राइट, तो हाँ अभी ये क्या हुआ है, यहाँ पर पास हुआ, तो आई कैन से ओके दिस इज अ पास, तो यहाँ पर ये रिकॉर्ड हो जाएगा। या ड्रिबल किया किसी ने, तो ये ड्रिबल हो जाएगा, जैसे वन डाइक, तो ड्रिबल होगा। एंड लेट मी सी, एडिट टैग एंड हाँ, यही सारे इवेंट्स जो हम बोल रहे थे सब मिला के एक मैच में 2000 से हाँ भी ऊपर होते हैं, राइट? हाँ तो हाँ हाँ, कांस्टेंट, बहुत सारे होते आई हैं। फील ये तो काफी जल्दी एआई भी, वी कीप टॉकिंग अबाउट हाउ एआई इज गोइंग टू टेक सो मेनी जॉब्स एंड ऑल, ये वाला जॉब तो आई फील कैन बी वेरी इजीली रेप्लिकेटेड बाय अ कंप्यूटर ना। आप हाँ हाँ, दस आराम से। 10 से 12 कोड्स हैं मैक्सिमम, वही होते हाँ 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 रहेंगे मिला जुला के बार बार। सो या दैट इज आल्सो हाँ, समथिंग। हो सकता है, आराम से हो सकता है, क्यों नहीं। तो ये पूरा आपका इवेंट, मिनट, सेकंड जो भी है, वो आपका आ जाएगा यहाँ पर ही। और आप देख सकते हो उधर डायरेक्टली कि यार, मतलब क्या 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 चीजें ग्राउंड में हुई इस बार, कौन सी मिनट पे, कौन से टाइम पे। ओह या, और इंटरेस्टिंग। yeah, that's it, like this is more or less about how we kind of get into it। और क्या क्या चीजें होती रहती है, अपन को पता नहीं चलता, अपन तो 90 मिनट का गेम देख के बोले, हाँ बस ठीक है, हो गया यार, ये ये जीत गोल गया, मिस ये कर हार दिया गया। उसने, ढंग से हाँ, मारा नहीं, ढंग से फिनिश नहीं किया उसने, बट या या आई मीन, लेकिन जस्ट टू कम अप विथ ऑल दीज डेटा पॉइंट्स, डेटा सेट्स, आई जस्ट फील इट्स स्पेशली फॉर पीपल हु कम फ्रॉम अ टेक्निकल बैकग्राउंड लाइक आईटी, आप भी आईटी बैकग्राउंड से हो, एंड फॉर पीपल हु आर रियली पैशनेट अबाउट फुटबॉल, जिन्होंने फुटबॉल को काफी क्लोजली इतने सारे मैचेस देखे हैं, तो डेटा इज समथिंग, इज it's not just limited to probably teams hiring data analysts and all. Its application also probably expands into probably people like us who are running podcasts trying to break it या down, and fans in general. हाँ, मतलब जैसे इट्स अबाउट नॉलेज एंड ऑल्सो अबाउट मेकिंग सो कॉलिंग अ राइट डिसीजन। जैसे आई सेड, मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, ये सीजन इसका नहीं ठीक है, ये सीजन ये बढ़िया खेला प्लेयर, तो मैं ऐसे ही 4 गेम देख के नहीं बोल सकता। और मेरी हाँ मतलब विजुअली जो मैं देखता हूँ वो ट्रू नहीं है। जैसे फॉर आई जस्ट गिव यू वन वेरी स्मॉल एग्जांपल। yeah माय ब्रदर वाज इन यूके लास्ट ईयर, और वहां पे रोनाल्डो खेल रहा था यूनाइटेड अगेंस्ट आर्सेनल, ही इज एन आर्सेनल सपोर्टर, ओके। तो वो okay गया हुआ था वहां लंदन में मैच देखने, तो um, हमको दिख नहीं रहा था, और ही इज नॉट अ रोनाल्डो फैन ऑफ कोर्स, बिकॉज आर्सेनल गाय, यू नेवर एक्सपेक्ट हिम टू सपोर्ट रोनाल्डो एनीवे। और फिर उसने बोला कि, और उसने गोल भी मारा था उस गेम में, सो ही सेड उसका रन्स लेते हैं ना, जो रोनाल्डो रन हाँ लेता है, और जहां से उसका विजन होता है ना गेम का, तो यूनाइटेड उस टाइम पे वो टेंजेंट में थी नहीं कि वो उसका विजन समझ सके कि वो कहां से रन ले रहा है और यहाँ से गोल बन सकता है। अगर आप ग्राउंड पे ऊपर से देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि यार, ये बंदा ऑफ ऑन द फील्ड, ऑफ द बॉल बहुत कुछ कर रहा है, तो सिर्फ दिख नहीं रहा है, और हम सिर्फ उसका गोल काउंट कर रहे हैं, या उसका वो स्टेप ओवर्स काउंट करते देखते हैं, बट इट्स नॉट जस्ट दैट इन फुटबॉल, राइट। सो ऑफ द बॉल correct. ऑल्सो टेक्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो ऑफ द बॉल में डेटा भी रिकॉर्ड नहीं होता,
हाँ, of the world data record. So if that तो gets आप कैसे जस्टिफाई unlocked, करोगे? वो तो हाँ, बिल्कुल। एंड वो लोग बोलते हैं कि जैसे कोई मेसी का सुपर पावर बोले कि उनका सुपर पावर क्या है। मेनी पीपल वुड प्रोबेबली से गोल मारना, बट मे बी Messi's super power is something that's a bit even more layered, that he's able to see players in positions and where they can be in the next 10 seconds and all. So those are Yeah, also so things that data can make it easy for 100%. people like us. So one with really good vision was once I think Xavi, long back of Xavi. course. Yeah, उसका true. उसका स्कैनिंग पर 3 सेकंड में वो कितना स्कैन मारता था बंदा, आप उसका वीडियो देखो यूट्यूब पे। कुछ हद हाँ, तक मुझे अभी मतलब मॉडरिच ऐसा करता है राइट नाउ not ऐसे। करंटली एंड कुछ हद तक आई थिंक नहीं क्रूज आई डोंट नो क्रूज का स्कैनिंग से ज्यादा तो उनका उनका पासिंग पासिंग एबिलिटी बहुत सही है पिन पॉइंटिंग Correct. He's been able एंड to put थियागो up accurate थियागो passes. थियागो, हाँ। हाँ थियागो उसका भी सिल्वा तो सेम अभी चेल्सी के लिए नहीं वो काफी नाम कमा। लिवरपूल वाला थियागो ओह अच्छा, या ट्रू, करेक्ट मिडफील्डर दैट। हाँ, तो आज वो के अभी किसी हमारे को याद नहीं है ना मुझे इस नहीं सीजन में वो आता। रहा नहीं फिट नहीं है यार बट ही आल्सो हैज अ गुड विजन इन टर्म्स या ऑफ ट्रू। एज अ मिडफील्डर So I feel for our first episode around data, this entire segment is something that हमने जानबूझ के थोड़ा लंबा रखा है, and I'll just appreciate the effort again, once again, Karan bhai, thank you for coming up with all these docs and presentations and slides, because अगर हम ऐसे बैठे बैठे बात करते ना, डेटा का पूरा समझ नहीं आता वो, क्योंकि कोई क्या बोल रहा है, हाउ हाउ आर वी ट्राइंग टू ट्रू एक्सप्लेन डिफरेंट मूविंग पार्ट्स एट द सेम टाइम. राइट So the fact that we are able to, come up with visual representations of the explanations that we are doing is something that probably makes it easier for our viewers. And yeah, till next week, where we have many more interesting points जो करण भाई आपको थोड़ा बताएंगे later on about heat maps, how player vests are used for data हाँ mapping, data collection and all those things and a lot more. अगर आप यहाँ तक पहुंचे हमारे पहले एपिसोड में, then congratulations, you are really passionate about knowing more around data in football. Do try and comment and tell us what kind of things do you want us to talk a bit more about, because yeah even we are trying to. that Yeah, will be of है ना? much help because it gives us a perspective of how value addition can be done. Yeah, absolutely. So after almost 45 minutes, and probably Yeah. I did not know where all the time got you passed by, and excited for the next episode, excited for doing this entire thing with Karan bhai. We have finally got someone who's doing a lot of work around data, and I and Anukarsh just thank ourselves to going and asking you to do this. Thank. So till next Yeah, no time, where problem. I love doing it, man. yeah, till next time, where we probably do a lot more of these things. Good night, everyone. Take care. Good night. Goodbye then.